Let's begin with the explanation of the text of the story, The Blue Bead, written by Nora Bo. Now, in this story, we find mainly the character of Sibia, which is very important. So let's begin. From deep water came the crocodile. So the story begins with the description of the crocodile. Description of crocodile is what is given in the beginning of the story. Out of black water, curved like whirlpools. Whirlpools are actually, you can say, it is an area of water in a river or a stream that shows that water moves very fast in a circle. ऐसे राउंड राउंड करके जो पानी में इस तरह से जो सर्कल बनता है, that is called whirlpools. Curved with whirlpools and into the frill of golden shallows by the stepping stones. So this crocodile could be seen from deep water. It came out, वो ऊपर की तरफ आया. Out of the black water, the water was black and curved with whirlpools. It was all surrounded with whirlpools and into the frill of gold shallows by the stepping stones. जो gold shallows here actually refers to the flat area in a river. Okay, so shallows are here refer to shallows here refer to flats, where the water is not too deep. He was twice the length of a tall man. Now look at his physical description. Here we are told about his physical description, like what it looks like. He was twice the length of a tall man. A tall man is supposed to be about 6 feet. Okay, so he was twice the length, मतलब लगभग 12 feet का ये था. And inside him, among the stones which he had swallowed, और उसके अंदर among the stones, उन stones के बीच में which he had swallowed, जो उसने निगल लिए थे, to aid digestion, rolled a silver bracelet. So from this, what we come to know that this crocodile could eat anything. It used to swallow everything, whether they are stones, whether they are anything. Even a silver bracelet was there inside it. टिम्बर वॉज बींग फ्लोटेड डाउन दिस ग्रेट इंडियन रिवर. ये एक बड़ा सा इंडियन रिवर था जिसमें कि टिम्बर को फ्लोट कराया जाता था फ्रॉम फॉरेस्ट फर्दर अप. इस रिवर के ऊपर जंगल थे जहां से कि टिम्बर को इस रिवर में डाला जाता था. एंड दिस रिवर वॉज यूज एज अ मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट बिकॉज द टिम्बर यूज टू फ्लोट डाउन. And there were sleepers lying stuck around the stones until someone came to dislodge them. और वहां पर जगह जगह पर उस रिवर में कुछ स्लीपर्स भी थे जिसमें कि स्टोन्स चारों तरफ स्टोन स्टक हो जाते थे वो, जब तक कि कोई और आकर उनको डिसलॉज ना करे, यानी कि अपनी जगह से ना हटाए. एंड सेंड देम ऑन देयर वे, और वो वापस अपनी जगह पर जा सके. Or until floods lifted them. Floods here refer to water, too much of water. या फिर water used to lift those slippers and jostle them along. And jostled here means pushed them along. या फिर पानी जो है बहुत एक साथ जब पानी आता था वो उनको लिफ्ट करके पुश करता था. The crocodile had no need to hide himself. क्रोकोडाइल को अपने आप को छुपाने की किसी से जरूरत नहीं थी because it was fearless. He came to rest in the glassy shallows. Again, shallows means flats where the water is shallow. It is not too deep. Why is it glassy? Because it was very shiny. वो अक्सर इन shiny shallows पे आता था रेस्ट करने के लिए. Among logs, logs is logs of wood, and balanced there on tiptoe on the rippled sand. और वहीं पर वो अपने आप को बैलेंस करता था on that rippled sand with only his raised eyes out of the water. Only his eyes could be seen out of the water, and raised nostrils breathing the clean sunny air. Otherwise, rest of his body will be there in the water only. Only his eyes and nostrils will be there outside water, and it used to come on those shallows and rest there for some time. Around him, broad, sparkling water traveled between cliffs and grass and forested hills. So, it is a kind of forest area where this river can be found, and there are cliffs. Cliffs are, small hills, and grass and forested hills, right? A jungle track came out of scrub each side. दोनों तरफ से जो है jungle track था उसमें. And down to the sun whitened stepping stones on which a little flycatcher was flirting and trilling along. और नीचे की तरफ to the sun whitened
stepping stones of that river. उस river में जाने के लिए जो stones थे, they were the stepping stones. They became white because of the sun, on which a little flycatcher, which is a small bird, was flirting and trilling along. Flirting, you can say, flying quickly from one place to another. Trilling is like turning, spinning along. The mother crocodile, blackish brown above and yellowy white under, ऊपर से blackish brown और नीचे की तरफ से yellow white, lay motionless. वो वहां पर still, motionless means still, without any movement पड़ा हुआ था, able to wait forever till food came. As if he is able to wait forever till food came. जब तक खाना नहीं उसको नहीं मिलता है, तब तक जैसे वो हमेशा वहां पड़ा रहेगा. This antediluvian saurian, now this is the scientific name basically. Antediluvian is because it is very old, right? Very old. And saurian is actually a reptile. Okay. So this prehistoric juggernaut is something that is extremely large and powerful. Okay. Extremely large and powerful is called juggernaut. So, this prehistoric juggernaut, ferocious and formidable. Ferocious means very dangerous, formidable, very strong, very powerful, a vast force in the water, propelled by the unimaginable and irresistible power. Propelled means pushed or driven forward. मतलब ये जो ऊपर आया था, by unimaginable and irresistible power, एक ऐसी पावर, एक ऐसी ताकत के साथ जिसको ना इमेजिन किया जा सकता है, ना रेजिस्ट किया जा सकता है, ऑफ द ह्यूज टेल. और वो पावर उसकी किसमें थी? ऑफ द ह्यूज टेल, जो बड़ी सी उसकी टेल थी. ले लैप्ड बाय रिपल्स. Ripples are, these water motions only are called ripples. A throb in his throat. There was a throb in his throat. Throb is a kind of strong beat which was there in his throat. His mouth running almost the whole length of his head. उसका जो mouth था, जो मुंह था खाने वाला, it was running almost the whole length of his head, was closed and fixed in that evil bony smile, and where the yellow underside came up to it, it was tinged with green. तो जो उसका माउथ था, that was also very big in size, and at this moment it was closed, and when it was closed it always looked like a very, like a smile, as if he is having a kind of bony smile. और जो नीचे की तरफ का उसका येलो पार्ट था, वो ऊपर की तरफ आकर now it was tinged with green. When so this whole is the description. Look at the imagery, use of visual imagery, by which you can very well imagine a crocodile. From the day perhaps 100 years ago, लगभग शायद वो 100 साल पहले, when the sun had hatched him into a sandbank, जब पहली बार सन ने उस हैच किया होगा उस एग को जिसमें ये क्रोकोडाइल रहा होगा, and he had broken his shell, जब उसने अपने शेल को तोड़ा होगा, and got his head out and looked around, जब अपना सिर बाहर निकाला होगा, चारों तरफ देखा होगा, ready to snap at anything before he was even fully hatched. At that time also it seemed as if he was ready to snap, ready to jump at anything before he was fully hatched. From that day, उस दिन से लगभग 100 years ago, when he had at once made for the water, जब पहली बार वो पानी के अंदर गया होगा, ready to fend for himself immediately. Ready to fend for himself means take care of himself. पानी के अंदर जाते ही he was ready to take care of himself immediately. He had lived by his brainless craft and ferocity. Ferocity means state of being ferocious, very dangerous. हाँ, तो तभी से वो इन qualities के साथ अपने brainless craft. Because why brainless? Because he was always guided by his instinct, not by brain, not by mind, but by his instinct. Since then, he has been living in the waters, and it must be around 100 years ago. Escaping the birds of prey and the great carnivorous fishes that eat baby crocodiles, he has prospered. बर्ड्स ऑफ प्रे से बचकर और वो कार्निवोरस फिशेस से बचकर जो अक्सर बेबी क्रोकोडाइल्स को खा जाती हैं, he has prospered catching all the food he needed. अब वो बड़ा हो गया था, वो he grew up catching all the food he needed, क्योंकि वो सारा खाना उसको मिलता था जिसकी उसको जरूरत थी, and storing it till putrid in holes in the
bank. और वो खाना खाता था, and whatever else was there, he used to store it in the putrid holes. Putrid means having a very disgusting smell, very disgusting smell in holes in the bank. Tepid water to live in. Tepid means lukewarm, halka garam pani. Lukewarm water to live in, and the plenty of rotted food grew him to his great length. So why he became so big in size, so huge in size? Because he had all good conditions to live. Lukewarm water and plenty of food he used to get, and due to that only he became so big. Now nothing could pierce the inch thick armored hide. Now nothing could pierce. अब कुछ भी उसकी इंच थिक, 1 इंच के जितनी मोटी आर्मर्ड, जो उसकी कवर्ड हाइड, हाइड इज द स्किन, जो उसकी स्किन थी, उसको कुछ भी पियर्स नहीं कर सकता था, भेद नहीं सकता था. नॉट इवन राइफल बुलेट्स. यहाँ तक कि राइफल बुलेट से भी उसकी स्किन को पियर्स नहीं किया जा सकता था, विच वुड बाउंस ऑफ. बिकॉज if you attack on him with rifle bullets, it will bounce off. Only the eyes and the soft underarms offered a place. सिर्फ उसकी eyes और soft underarms ही वो जगह थी जहां पर उसको अटैक किया जा सकता था. अदरवाइज उसकी स्किन पर कोई फायदा नहीं था, बिकॉज इट वॉज वेरी थिक. He lived well in the water. वो पानी में अच्छे से रहता था. Sunning himself sometimes with other crocodiles. कई बार वो बाकी जो crocodiles के थे उनके साथ धूप सेकने आ जाता था. Muggers as well as the long snouted fish eating gharials, you know, on warm rocks and sandbanks when the sun dried the clay on them quite white, and where they could plop off into the water in a moment if alarmed. So with other crocodiles, whether they were mugger or gharials, he also used to come to on the sandbanks to sun himself, and that used to be the place from where they could plop off. Plop off means drop. कुछ suddenly एकदम से पानी में भी अपने आप को drop कर लेते थे, चले जाते थे, if there is some situation, alarming situation, difficult situation. द बिग क्रोकोडाइल फेड मोस्टली ऑन फिश. अक्सर ये जो बिग क्रोकोडाइल था, ये फिश खाता था, बट ऑल्सो ऑन डियर एंड मंकीज कम टू ड्रिंक, परहैप्स अ डक और टू. लेकिन कई बार वो डियर और मंकीज को भी अटैक करता था जो वहां पानी पीने आते थे, या कोई डक को भी वो कभी कभी खा लेता था. बट समटाइम्स हियर एट द फोर्ड ही फेड ऑन पाई डॉग्स फुल ऑफ पैरासाइट्स और अ स्केलेटन काउ. और या फिर अक्सर ये जो फोर्ड था, ford actually is a shallow part of a river. Okay, and on this ford, through this ford only people cross the river. Okay, so this shallow part of the river can be crossed by walking, so that is why it is called ford. Okay, so अक्सर ford पर जब कोई पाई डॉग या कोई काऊ पानी पीने आती थी, तो ये उनका भी शिकार करता था. And sometimes he went down to the burning ghats and found the half burned bodies. Burning ghats means where the dead bodies were burnt, and found half burned bodies of Indians cast into the stream. और अक्सर वो burning घाट चला जाता था जहां पर उसको half burned bodies मिल जाती थी. Beside him in the shoals, as he lay waiting, glimmered a blue gem. Beside him, अब ये सब अभी तक तो हमें डिस्क्रिप्शन दिया है क्रोकोडाइल का. अब हमें बताया गया है अबाउट अ ब्लू जेम. ओके, सो बिसाइड हिम, उसके बराबर में, इन द शोल्स ऑफ वाटर, एज ही ले वेटिंग, जैसे जहां पर वो जैसे वेट करता हुआ पड़ा रहता था, ग्लिमर्ड, शोन अ ब्लू जेम, वहां पर एक ब्लू जेम चमकता था. इट वॉज नॉट अ जेम दो, हालांकि वो कोई जेम नहीं था, मतलब वो कोई प्रेशियस स्टोन नहीं था. इट वॉज सैंड वॉर्न ग्लास दैट हैड बीन रोलिंग अबाउट इन द रिवर फॉर अ लॉन्ग टाइम. वो तो एक ऐसा ग्लास था विच वॉज सैंड वॉर्न, मतलब सैंड ने उसको उसकी ऐसी कंडीशन कर दी थी, और इतने समय तक पानी में वो रोल करता रहा. By chance, it was perforated right through. By chance, it was perforated. Perforated means pierced right through. बिल्कुल सेंटर में, उसके मिडिल में जो है, उसके एक छेद हो गया था. The neck of a bottle, perhaps a blue bead, and then it used to look like a blue bead, right? That is what the story is named after, the blue bead. इन द श्रिल नॉइजी विलेज अबव द फोर्ट. अब उस फोर्ट के ऊपर, मतलब ये रिवर है, रिवर में वो फोर्ट है, फ्रॉम वेयर द रिवर कुड बी क्रॉस्ड, एंड अबव दैट वाज अ विलेज, नॉइजी विलेज.
In a shrill, noisy village above the fort, out of a mud house, the same color as the ground, that is brown, came a little girl. तभी उस इसी रिवर के ऊपर विलेज में से एक मिट्टी के घर से तभी जो मिट्टी का कलर होता है दैट इज ब्राउन, उसी कलर की एक लड़की निकली. अ थिन स्टावलिंग चाइल्ड, एक पतली सी. स्टावलिंग मीन्स थिन बिकॉज ऑफ लैक ऑफ फूड, मार्क्ड बाय पॉवर्टी. Child dressed in a earth colored rag, who was dressed in a earth colored rag, वही brown से कलर का उसने एक rag पहना हुआ है. She had torn the rag in two to make shirt and sari. So from here we come to know about the description of this girl Sibya, who is the protagonist of this story. And since the beginning only we come to know about her poverty as well. सिबिया वॉज ईटिंग द लास्ट ऑफ हर मील, वो आज का अपना आखिरी खाना खा रही है. चपाती रैप्ड राउंड अ स्मीयर ऑफ ग्रीन चिली एंड रैंसिड बटर. रैंसिड मीन्स टेल, पुराना बासी बटर के साथ. एंड शी डिवाइडेड दिस ऑल्सो टू मेक इट सीम मोर एंड बिट इट. और वो उस एक रोटी को बेचारी ग्रीन चिली और स्टेल बटर के साथ खा रही है. एंड शी इवन डिवाइडेड इट इनटू टू सो दैट इट सीम्स मोर टू हर, showing straight white teeth, अपने सीधे दांत दिखाते हुए. With her ebony hair and great eyes, ebony means very dark black. Okay, very dark black hair and great eyes, and her skin of oil brown cream, she was a happy, immature child woman of about 12 years old. वो एक बहुत ही happy, immature child woman थी, लगभग 12 साल की. Barefoot, of course, नंगे पैर थी, and often woozy cold on a winter morning, and born to toil. Born to toil means born to labor. जैसे कि वो सिर्फ मेहनत करने के लिए पैदा हुई हो. In all her life, she had never owned anything but a rag. पूरी जिंदगी में उसके पास कुछ भी अपना नहीं था सिवाय उस रैग, उस फटे से कपड़े के जो वो पहनती थी. She had never owned even one anna, not a pice, not a pie, even to buy, say, a handful of blown glass beads from that stall in the bazaar where they were piled like stars, and one of the thin glass bangles that the man kept on a stick, and you could choose which color you would have. कुछ नहीं था उसके पास, ना कोई आना, कोई पाइस, कोई पैसा तक भी नहीं, जिससे कि वो कभी कोई एक ग्लास बीड ही खरीद ले बाजार से, या कोई एक ग्लास की बैंगल खरीद ले. मीन्स शी हैड नथिंग विच यू कैन से एज लग्जूरियस फॉर हर, दो दीज आर नॉट लग्जूरियस थिंग्स, बट फॉर हर दे वर लग्जरी, बट स्टिल शी कुडंट अफोर्ड देम. शी न्यू व्हाट फाइनरी वॉज, लेकिन उसको पता था कि फाइनरी, फाइनरी एक्सपेंसिव ब्यूटीफुल क्लोथ्स, जूल्स, ये सब क्या होते हैं. शी न्यू व्हाट इट वॉज दो. शी हैड बीन विद हर पेरेंट्स एंड ब्रदर्स ऑल थ्रू द जंगल टू द लिटिल टाउन एट द रेल हेड वेयर देयर वॉज दिस बाजार. क्योंकि वो अक्सर अपने पेरेंट्स और ब्रदर के साथ पूरा जंगल क्रॉस करके एक छोटे से टाउन में जाती थी जहां पर ये बाजार लगता था. नाउ वील कम टू नो अबाउट द बाजार. देयर इज दिस डिस्क्रिप्शन ऑफ bazaar, which is important. What kind of Indian bazaar was it? And she had walked through all the milling people and the dogs and monkeys full of fleas. वो उन लोगों के बीच से होकर निकलती थी जितने milling people थे, people who work in the mills, and the dogs and monkeys full of fleas, मक्खियों से भरे हुए dogs monkeys के बीच से. The idling, gossiping, bargaining humanity. Idling means as if they have nothing to do. Gossiping, gossip करते हुए. Bargaining, पैसों के लेन देन को बार्गेन करते हुए. ह्यूमैनिटी, ह्यूमैनिटी मीन्स पीपल. स्पिटिंग बीटल जूस, और अक्सर बीटल जूस स्पिट करते हुए, थूकते हुए वो जाते थे. Heard the bell of a sacred bull clonking as he lumped along through the dust and hubbub. अक्सर वहां पर सुना जा सकता था ये सेक्रेड बुल की बेल को बजते हुए, जो कि वहां पर क्लॉन्ग करते हुए चलता था उस धूल मिट्टी के बीच में. She had paused, amazed, before the sweetmeat stall. Now we'll come to know about different kinds of shops which were there. वहां पर एक sweetmeat stall था, छोटी सी मिठाई की दुकान. To gaze, वो अक्सर वहां पर रुक जाती थी. To gaze at the brilliant honey confections, शहद की बनी हुई बहुत ही अच्छी अच्छी मिठाइयाँ, स्वीट फूड होता था वहां पर. A buzz with dust and flies, मक्खी और धूल से भरा हुआ. दे स्मेल्ड वंडरफुल, लेकिन उसको उनकी खुशबू बहुत अच्छी लगती थी. अबव द स्मेल्स ऑफ ड्रेन्स एंड ह्यूमैनिटी एंड चीप सिगरेट्स. बाकी सब जो वहां पर ड्रेन्स की और लोगों की स्मेल और चीप सिगरेट्स की जो स्मेल के ऊपर उस कन्फेक्शंस की स्मेल उसको बहुत अच्छी लगती थी.
एट होम शी समटाइम्स टेस्टेड वाइल्ड हनी, घर पर कभी उसने वाइल्ड हनी खाया था और क्रश द सिरप आउट ऑफ अ स्टॉक ऑफ अ शुगर केन, या फिर कभी गन्ने का रस उसने पिया था. बट दीज स्वीट्स वर ग्रीन एंड magenta, but these sweets always were always very attractive to her. They always seemed attractive because they were colorful. देन देयर वाज द क्लॉथ स्टॉल. फिर वहां पर एक क्लॉथ का भी, कपड़े का स्टॉल था, स्टैक्ड विद ग्रेट रोल्स ऑफ न्यू कॉटन क्लॉथ. बड़े बड़े उसमें थान थे, रोल्स थे न्यू कॉटन क्लॉथ के, स्टेम्प्ड एट द एज विद द मेकर्स साइन ऑफ अ टाइगर्स हेड, जिसके एक किनारे पर मेकर का साइन होता था, दैट वाज टाइगर्स हेड. एंड स्मेलिंग सो वंडरफुल ऑफ इट्स ड्रेसिंग, और उसमें से भी उसको बड़ी अच्छी खुशबू आती थी. स्ट्रेट फ्रॉम द मिल्स दैट सिबिया कुड हैव स्टूड बाय इट ऑल डे. सीधा वो जो रोल्स थे कॉटन क्लॉथ के, वो मिल से डायरेक्टली आते थे, एंड दे यूज्ड टू बी अ डिफरेंट काइंड ऑफ स्मेल. एंड शी यूज्ड टू बी सो अमेज्ड दैट शी कुड स्पेंड हर होल डे देयर. वो पूरा दिन वहां पर बिता सकती थी. बट देयर वर अदर वंडर्स टू सी. वहां पर लेकिन और भी बहुत सारी चीजें थी. सैटिन स्यून विद रियल सिल्वर थ्रेड. सैटिन जिसको कि रियल सिल्वर के थ्रेड से, जरी का काम जिस पर हो. टिन ट्रेज फ्रॉम बर्मिंगम, एंड अ साड़ी विच हैड लॉट चिप्स ऑफ लुकिंग ग्लास एम्ब्रॉयडर्ड इनटू द वाटर. इस तरह की साड़ी जिसपे ग्लास एम्ब्रॉयडरी हो. She joined the crowd round a Kashmiri traveling merchant on his way to the bungalows. यहाँ तक कि वहां पर एक कश्मीरी मर्चेंट आता था, जिसके चारों तरफ लोग भीड़ इकट्ठी करके खड़े हो जाते थे, तो she also used to join that crowd. She was showing dawn colored silks that poured like cream. He was showing, तो वो वहां पर दिखाता था सिल्क के कपड़े, dawn colored मतलब very light colored, like cream. And he had got a little locked chest. With chest here means casket, means a box. एक छोटा सा उसके पास बॉक्स भी होता था, with turquoises and opals in it, जिसके ऊपर बड़े सुंदर सुंदर टर्कोइज और ओपाल्स के स्टोन्स और बीड्स लगे होते थे. Best of all, a box which, when you pressed it, a bell tinkled and a yellow woolen chicken jumped out. और इन सब से अच्छा होता था कि जब एक बॉक्स जिसको अगर आप प्रेस करो तो एक बेल बजती थी और उसमें से एक येलो चिकन बाहर निकलता था. There was no end to the wonders of the world. So these were the wonders of the world to this girl. But Sibya, in all her life from birth to death, was marked for वर्क. बट ये जो लड़की थी सिबिया, फ्रॉम हर बर्थ टू डेथ, पूरा ऐसा लगता था जैसे जब से वो पैदा हुई है और उसके मरने तक वो सिर्फ काम के लिए बनी है. सिंस शी कुड टॉडल, जब तक कि वो थोड़ा लड़खड़ा कर चलना उसने शुरू किया, शी हैड हस्क्ड कॉर्न, गैदर्ड स्टिक्स एंड पुट डंग टू ड्राई, एंड कुक्ड एंड वीडेड एंड कैरीड एंड फेच्ड वाटर एंड कट ग्रास फॉर फॉडर. मतलब उसने अभी चलना शुरू ही किया था, तभी से ही वो काम करना शुरू कर दिया था, और ये सारे काम वो किया करती थी. She was going with her mother and some other women. Now we talk about that particular day, when the plot of the story takes place. She was going with her mother and some other women now to get paper grass from the cliffs above the river. अब वो अपनी मदर और कुछ और विलेज की जो विमेन थी उनके साथ पेपर ग्रास इकट्ठा करने के लिए क्लिफ्स पर गई थी, रिवर के ऊपर. वेन यू हैड इनफ ऑफ इट, जब आपके पास काफी पेपर ग्लास इकट्ठा हो जाएगा, यू कुड टेक इट डाउन बाय बुलक कार्ट टू द रेल हेड. आप उसको बुलक कार्ट से रेल हेड तक ले जा सकते थे, एंड सेल इट टू द एजेंट हु वुड अरेंज फॉर इट्स डिस्पैच टू द पेपर मिल्स. और वहां आप उसको उस एजेंट को बेच सकते थे जो कि पेपर मिल्स तक उसको पहुंचा देगा. द women often toiled all day at this work. इस काम के लिए अक्सर जो लेडीज थी, जो विमेन थी, वो पूरा दिन मेहनत करती थी. एंड द एजेंट सैट ऑन सिल्क कुशंस स्मोकिंग अ हुक्का. जबकि वो जो एजेंट था वो सिल्क कुशंस के साथ बैठा रहता था, हुक्का पीता रहता था. Such thoughts did not trouble Sibia, however. लेकिन इस तरह के thoughts, what kind of thoughts, means this class differentiation, the life of poverty that she was living, they never disturbed her, they never troubled her. As she skipped along with a sickle and homemade hay fork beside her mother. वो तो अपना sickle और homemade hay fork जो था उसको लेकर अपनी माँ के बराबर बराबर में उछलती हुई जा रही थी. You could skip on the way out, but not the way back. When you ached with tiredness. आप जाते हुए तो उछल उछल के जा सकते थे, लेकिन वापस आते हुए आप ऐसा नहीं कर सकते थे. क्यों? बिकॉज एट दैट टाइम यू विल हैव एक विथ टायर्डनेस, थककर दर्द हो रहा होता था शरीर. एंड देयर वाज अ ग्रेट लोड टू कैरी. और वापस आते हुए बहुत उनको वजन उठाकर आना पड़ता था.
Some of the women were wearing necklaces made out of लाल लाल बीजेस. कुछ जो उनमें से विमेन थी, दे वर वेयरिंग नेकलेसेस, वो कुछ नेकलेस पहने हुए थी लाल लाल बीजेस. बीजेस मीन्स सीड्स, जो उन्होंने रेड रेड कलर के सीड्स थे जिनसे बनाए हुए थे. द शाइनी स्कारलेट सीड्स, ब्लैक वन एंड. एक तरफ से वो ब्लैक कलर के होते थे, बहुत ही शाइनी स्कारलेट सीड्स होते थे जिनसे उन्होंने ये अपने नेकलेसेस बनाए हुए थे. एंड दैट ग्रू एवरीवेयर इन द जंगल, और जंगल में हर जगह ये उगते थे. इट वॉज बेस्ट टू हैव न्यू नेकलेसेस ईच ईयर. हर साल एक नए नेकलेस होना में बड़ा अच्छा लगता था, इंस्टेड ऑफ लास्ट ईयर्स फेडेड वंस, बजाय इसके कि पुराने साल के फेडेड वाले पहनना. एंड सिबिया वॉज मेकिंग वन टू, और सिबिया भी बना रही थी एक अपने लिए. हाउ नाइस इट वॉज गोइंग टू बी टू हियर दैट रैटलिंग स्विश राउंड हर नेक. कितना मजा आएगा, कितना अच्छा लगेगा जब उसको भी अपने गले में आवाज सुनाई देगी. as she flourished along with lots of necklaces. क्योंकि वो हमेशा बहुत सोचा करती थी बहुत सारे नेकलेसेस के बारे में, है ना, that she will have. बट ईच सीड हार्ड एट स्टोन, लेकिन हर बीज जो था हार्ड एट स्टोन हैड टू बी ड्रिल्ड विद अ रेड हॉट नीडल. लेकिन इन सीड्स को नेकलेस बनाने के लिए दे वर सपोज टू बी पियर्स्ड, उसमें छेद करना जरूरी था, और उसको छेद करने के लिए दे वर सो हार्ड कि नीडल की जरूरत पड़ती थी. एंड द फैमिली नीडल वॉज स्नैप्ड, और फैमिली नीडल जो थी वो टूट गई थी, दैट वॉज ब्रोकन. सो शी मस्ट वेट टिल शी कुड बाय अनदर. तो उसको वेट करना पड़ेगा जब तक कि उस वो दूसरी नीडल ना खरीद सके. Oh, for strings and strings of glass and beads, anklets, earrings, nose rings, bangles, all the gorgeous dazzle of the bazaar, all her little body, little golden body decorated. So this was her dream, this kind of dream she used to have. She was a dreamy and imaginative girl. Though she was living this life of poverty, but she was always fascinated by different jewelries. And she always imagined herself, her body being decorated with all these ornaments. Chattering as they went, जब वो बातें करते जा रहे थे, the women followed the dusty track toward the river. अब उन्होंने वो कच्चा जो रास्ता था रिवर की तरफ वो पकड़ लिया. On their way they passed a गुज्जर encampment of grass huts. अपने रास्ते में ही उनको मिला एक गुज्जर encampment. Now please understand, encampment is the place where a group is encamped. Matlab they set up a kind of camp, that is called encampment. So, and Gujars used to live there. Gujar encampment of grass huts where these nomadic graziers, nomadic why? Because they used to roam around from one place to another. They never have had a permanent house. Graziers would live for a time until their animals had perhaps finished all the easy grazing within reach. इनका जो मेन ऑक्यूपेशन था दैट वाज फार्मिंग इन अ वे, नॉट फार्मिंग एक्चुअली, कीपिंग कैटल्स. ठीक है, तो वो कैटल रखते थे अपने पास, एनिमल्स रखते थे, तो वो एक जगह पर तब तक रहते थे जब तक कि उनके एनिमल्स को प्रॉपर ग्रेजिंग के लिए लैंड अवेलेबल हो, और they were not able to sell enough of their white butter and white milk in the district, या फिर उनका दूध और जो मिल्क है, जो दूध और बटर है वो बिक ना रहा हो, और they were no one to buy the young male buffaloes for tiger bait. So till that time, when they were able to sell their products, when they were able to sell the male buffaloes, young male buffaloes, they used to live at one place, otherwise they would move to another place. Or perhaps a cattle killing tiger was making a nuisance of himself, and this was also one more reason by which they could leave a place कि कोई टाइगर जो है उनके कैटल को मार ना रहा हो. Then they would move on. अगर ये सब कुछ ना हो तो ठीक है, otherwise they would move on. सिबिया glanced at the गुजर women as she went past. जब वो वहां से गुजर रहे थे तो सिबिया ने भी एक गुजर women को देखा. They wore trousers tight and wrinkled at the ankles, and in their ears large silver rings made out of melted rupees. And one of them was clinking a stick against the big brass gharas in which they fetched water from the river for the camp, to see which ones were empty. तो उसने देखा कि एक गुजर women थी. Now her description is given, what kind of dress she was wearing. She was also wearing large silver rings which were made of melted rupees. ठीक है, और एक जो है, एक स्टिक से बड़े बड़े ब्रास के घड़े थे. घड़े मीन्स पॉट्स.
So there were big brass pots in which they used to fill water. They used to store water in those pots. And with the help of that stick, वो एक एक पर मार कर देख रही थी कि कौन सा उसमें खाली है. The men and boys were out of camp just now. इस समय men और boys वहां पर नहीं थे with the herd or gone to the bazaar to sell produce. या तो वो अपने जो उनके गाय भैंस थे उनको चराने के लिए गए होंगे, या फिर जो उनके प्रोडक्ट्स थे उनको बाजार में बेचने के लिए गए होंगे. बट वन और टू बफेलोज वर स्टैंडिंग अबाउट. सिर्फ एक दो बफेलोज वहां पर खड़े हुए थे. क्रीचर्स ऑफ ग्रेट वेट नोजेस and moving jaws and god blank bones. So you will see now here the description of buffaloes is given. So in this story, so many descriptions about each and everything is given. The Gujars were Junglis. Now we are told who these Gujars were. They were Junglis, means they used to live in forest as Sibya was too. जैसे सिबिया खुद एक जंगल में रहने वाली लड़की थी, born and bred in the forest because she was born and brought up in the forest only. For countless centuries, forebears means their ancestors had lived like this. पता नहीं कितनी सदियों से उनके जो ancestors, जो उनके पूर्वज थे, वो ऐसे ही रहते थे, getting their living from animals, from grass and trees, as they scratched their food together and stored their substances, large herds and silver jewelry. वो अपना जो उनकी लिविंग थी, जो पैसा था, वो एनिमल से, घास से, पेड़ों से, इनसे कमाते थे. और उनकी जो सेविंग्स हुआ करती थी, वो या तो एनिमल्स के लार्ज हर्ड्स के रूप में होंगी या फिर सिल्वर ज्वेलरी के रूप में. They were man in the wandering pastoral age. ऐसा लगता था कि they were the people of pastoral age, not stone age hunters and not yet cultivators. ना तो वो stone age के hunters थे, ना ही वो अभी cultivators थे जो agriculture से पैसा कमाए. Okay, they lie somewhere between them. Now there was the river. So now they reached the river, twinkling between the trees. पेड़ों के बीच में ट्विंकल करती हुई, sunlit beyond dark trunks of the trees. They could hear it rushing along. वो उसको बहते हुए सुन सकते थे. The women came out on the shore. अब जो women थी उसके किनारे पर आ गई and made for the stepping stones. और stepping stones पर चलना उन्होंने शुरू कर दिया. They had plenty to laugh and bicker about. बहुत कुछ था उनके पास हंसने के लिए, बोलने के लिए. As they approached the river in a noisy crowd. और जैसे ही वो रिवर के पास आई, शोर मचाती हुई. They girded up their skirts. अपने skirts को उन्होंने fold कर लिया. So as to jump from stone to stone. जिससे कि वो एक पत्थर से दूसरे पत्थर पर आसानी से कूद सकें. And they clanked their sickles and forks together over their shoulders. अपने जो उनके वो इक्विपमेंट्स थे, सिकल्स, फोक्स, वो उन्होंने अपने शोल्डर्स पर रख लिए to have ease of movement, आसानी के लिए. They shouted their quarrels above the gush of water. मतलब gush of water means the sound of water. gush of river, जो sound of water था उसके ऊपर उनकी जो बहस थी, जो आवाजें थी, वो सुनाई दे रही थी. They were so loud. Noise frightens crocodiles. और crocodiles हमेशा शोर से डरते हैं. The big mugger did not move and all the women crossed in safety to the other bank. जो बड़ा crocodile था, उन सबके noise की वजह से वो बिल्कुल नहीं हिला और सारी women ने आसानी से रिवर को क्रॉस कर लिया और दूसरे किनारे पर पहुंच गई. Here they had to climb a still hillside to get at the grass. यहाँ पर उनको एक hillside पर चढ़ना था grass को इकट्ठा करने के लिए. But all fell to with a will and sliced away at it wherever there was foothold to be had. और फिर वहां से सब अपनी इच्छा से अलग अलग हो गई और जहां जिसको भी मतलब जगह मिली वो वहां पर बैठकर अपना काम करने लगा, ग्रास कलेक्ट करने का. Down below them ran the broad river. उनके नीचे ही वो बड़ी सी रिवर बह रही थी, pouring powerfully out from its deep narrow pools among the cold cliffs and shadows. उन cliff से निकलते हुए, shadows से निकलते हुए, ये जो बड़ी सी रिवर थी, ये वहां पर बह रही थी, spreading into warm shallows lit by किंगफिशर्स. और ऊपर से वो पीछे की तरफ से तो थोड़ी गहरी और नैरो होती थी और यहाँ पर वो ब्रॉड उसमें आकर शेलोज में टर्न हो जाती थी, जहां पर कि बहुत सारी किंगफिशर्स भी देखी जा सकती थी. ग्रेट टर्टल्स लिव देयर. बड़े बड़े टर्टल्स भी उसमें रहते थे. एंड महासीर वेइंग मोर देन 100 pounds. टर्टल्स, महासीर, दे कुड बी सीन ओवर देयर, जिनका जो वजन था वो लगभग 100 pounds से भी ऊपर था. महासीर इज अ कॉमन नेम गिवन टू अ टाइगर लाइक फिश. एक फिश होती है टाइगर लाइक लगती है, उसको महासीर बोलते हैं. क्रोकोडाइल्स टू, वहां पर क्रोकोडाइल्स भी थे.
Sometimes you could see them lying out on those slabs of clay over there, but there were none to be seen at the moment. कई बार ये क्रोकोडाइल्स को बाहर देखा जा सकता था, वो पड़े रहते थे, बड़े बड़े स्लैब्स थे क्ले के उनके ऊपर, लेकिन अभी कोई नहीं था. Where Sibia was working, wind coming across hundreds of miles of trees cooled her sweating body. जहां पर सिबिया काम कर रही थी, हवा जो है ठंडी ठंडी उसकी स्वेटिंग बॉडी को कूल कर रही थी. एंड शी कुड लुक डाउन ओवर द रिवर एज इफ शी वर अ बर्ड. और वो नदी की तरफ ऐसे देख रही थी जैसे कि वो खुद एक बर्ड हो, एक पक्षी हो. सो यू सी, फ्रॉम दिस वी कम टू नो हाउ इमेजिनेटिव शी वॉज. Although she did not dare stop for a moment under her mother's eyes, हालांकि वो एक मिनट के लिए भी रुक नहीं सकती थी काम करने से, बिकॉज हर मदर वॉज देयर टू वॉच हर. हर इमेजिनेशन टुक हर इन स्वूपिंग फ्लाइट ओवर द ब्राइट वाटर. लेकिन अपनी इमेजिनेशन से वो उस ब्राइट वाटर के ऊपर उड़ती हुई जैसे जा सकती थी. एंड गोल्डन एयर टू द बैंक्स वेयर शी हैड प्लेड एज अ चाइल्ड. और उस हवा के थ्रू वो उन बैंक्स, उन किनारों पर जा सकती थी जहां पर उसने कभी अपने बचपन में खेला था. In those cavelets above the high water mark of the highest flood, she had stored some little balls molded of clay where while they hardened. वहीं पर उन केवलेट्स में, केवलेट्स यू नो, छोटी छोटी गुफा टाइप होती हैं, जो उस हाई वाटर मार्क जो जहां पर सबसे ज्यादा पानी था उसके ऊपर ये छोटी छोटी कुछ गुफा टाइप उन्होंने बना रखी थी, जिसमें उसने छोटे छोटे क्ले के बाउल्स बनाकर रखे हुए थे हार्ड होने के लिए, सूखने के लिए. If there were anything that could be used for coloring, they would look fine painted with marigolds and elephants. अगर उसको कुछ मिल जाए जिससे वो उनको कलर कर सके तो बहुत सुंदर लगेंगे. Child, the sharp word, the glare of a mother's and angry sweating face pulled Sibya back to work and they toiled on. अब वो ये सब सोच रही थी कि अचानक से उसको आवाज आई अपनी मदर की, और उसने देखा कि उसकी मदर उसको गुस्से में घूर रही थी, तो उससे सिबिया वापस अपने काम पर लग गई. बट एट लास्ट इट वॉज टाइम टू गो बैक टू सी देयर एनिमल्स. लेकिन अंत में अब ये समय आ गया था कि अब वो वापस अपने एनिमल्स को देखने जाएं, एंड द इवनिंग मील, और रात का खाना बनाने के लिए. द लोडेड विमेन सेट आउट टू क्रॉस द रिवर अगेन. अब जो लोडेड विमेन थी, सबने जो ग्रास थी लोड कर ली, और वो वापस उन्होंने अपनी जर्नी शुरू करी नदी की तरफ. सिबिया hung back, लेकिन सिबिया पीछे रुक गई. She would just dawdle a bit and run and see if the little clay cups were still there in the cave waiting to be painted and used. उसने सोचा वो जल्दी से दौड़कर जाएगी और अपने उन क्ले कप्स को देखेगी कि वो सूख गए हैं, जिससे कि उनको पेंट किया जा सके और यूज किया जा सके. Although the women were now tired and loaded, they still talked. हालांकि वो विमेन अभी थकी हुई थी पूरे दिन काम करके, उनके पास सामान भी था उठाने के लिए, लेकिन वो फिर भी बातें कर रही थी. Those in front yelled to those behind. आगे चलने वाली पीछे वालियों पर चिल्ला रही थी. They crossed the river safely and disappeared up the track into the trees on the other side. उन्होंने सेफली रिवर क्रॉस किया और अब वो गायब हो गई उन रास्तों पर जो कि दूसरी तरफ थे पेड़ों में. इवन देयर वॉइसेस डाइड अवे. यहाँ तक कि उनकी आवाजें भी अब खत्म हो गई, डिसअपियर हो गई. साइलेंस फेल, सन्नाटा छा गया. सिबिया केम डाउन अलोन टू द स्टेपिंग स्टोन्स. अब सिबिया जो है अकेले ही उन स्टेपिंग स्टोन्स पर आई रिवर को क्रॉस करने के लिए. The light of evening was striking up the gorge, pink into the ultraviolet shadows. जो लाइट ऑफ द इवनिंग, शाम की जो लाइट थी, दैट वाज स्ट्राइकिंग अप द गॉर्ज. गॉर्ज इज अ नैरो वैली बिटवीन हिल्स और माउंटेन्स. मतलब यू कैन से दैट typically steep rocky walls and a stream running through it. Okay, तो उस गॉर्ज पर वो लाइट पड़ रही थी. Now that the sun was off it, the water poured almost invisible among the stones. अब क्योंकि उसके ऊपर सूरज पड़ रहा था, जो पानी था बिल्कुल इनविजिबल लग रहा था, दिख नहीं रहा था उन पत्थरों पर. With no reflection to show where it began. Sibia stepped onto the first stone. सिबिया पहले स्टोन पर चढ़ी. शी वॉज हेविली वेटेड. उसके पास भी बहुत वेट था. हर मसल्स स्ट्रेच्ड एंड एकिंग. उसकी मसल्स जो हैं खिंच रही थी, दर्द कर रही थी. The hayfolk squeaked in the packed dry grass and dug into her collarbone so close under the skin. उसका जो hayfolk था ना, that long handed fork, जिसमें दो कर्व्ड prongs होते हैं, तो वो उसके ड्राई ग्रास में से कहीं उसके कॉलर बोन पे डिग कर रहा था. ऑलराइट. इन स्पाइट ऑफ द साड़ी बंच अप टू मेक अ पैड. जबकि उसने साड़ी को अपनी इकट्ठा करके एक पैड टाइप बना रखा था, लेकिन फिर भी
When she was halfway over, जब वो आधे रास्ते आ गई, she put her load down on a big boulder to rest. Boulder means stone. उसने अपना जो ये लोड था उसको एक बड़े से पत्थर पे रख दिया रेस्ट करने के लिए. And leaned, breathing on the fork. और अब वो थोड़ा लीन हो गई, ब्रीथ कर रही थी उस फॉक पर. फॉक I told you that shallow, ना, from where people could cross the river. At the same moment, तभी वहां पर a Gujar woman came down with two घड़ास to the water on the other side. तभी दूसरी तरफ उसने देखा कि एक गुजर वुमन दो घड़े लेकर आई थी पानी भरने के लिए. In order to get the good clear water, which would quickly fill both घड़ास to the top without sand, she walked on to the stepping stones. अब थोड़ा क्लीन वाटर, क्लियर वाटर लेने के लिए, जिससे कि उसमें ज्यादा रेत ना आए, वो थोड़ा और स्टेपिंग स्टोन्स पर आगे की तरफ चली उनको भरने के लिए. शी वॉज विद इन अ यार्ड ऑफ द क्रोकोडाइल व्हेन ही लंज्ड एट हर. अब वो सिर्फ क्रोकोडाइल से थोड़ी ही दूर पे थी जब अचानक से वो क्रोकोडाइल उसके ऊपर कूद गया. Up out of the darkling water heaved the great reptile, water slushing off him. उस पानी के उस डार्कलिंग वाटर के ऊपर अचानक से वो कूदा. दिस ग्रेट रेप्टाइल मीन्स दैट क्रोकोडाइल, वाटर स्लशिंग ऑफ हिम, पूरा पानी उसके ऊपर स्लश करके गया. हिज लिविड जॉज yawning and all his teeth flashing as he slashed at her leg. पूरे उसके दांत दिख गए थे पूरा जैसे ही उसने अपना मुंह खोला और उसके लेग को पकड़ लिया. The woman screamed और जोर से चिल्लाई. Dropped both brass pots with a clatter on the boulder. दोनों उसके घड़े जो थे मतलब वो गिर गए. From whence they bounced to the water. पहले वो बोल्डर पे गिरे, मतलब स्टोन पत्थर पे बड़े से, और फिर वहां से उछल के पानी में गिर गए. And Sibia saw them bob away in the current. और सिबिया ने देखा कि किस तरह से वो जो घड़े थे वो अचानक से पानी में, करंट इज द फ्लो, उसके फ्लो के साथ बह गए. Oh, the good God, oh, the two good vessels gone. इतने अच्छे दो बर्तन चले गए, ये सिबिया ने सोचा. The गुजर वुमन recoiled from the crocodile. गुजर वुमन अपने आप को क्रोकोडाइल से रिकॉइल करने की कोशिश कर रही थी. But his jaws closed on her leg at the same moment as she slipped and fell on the bone breaking stone. लेकिन जो उसके जॉ थे क्रोकोडाइल के, वो उसने उसके लेग को कस के पकड़ लिया था, और जबकि वो स्लिप हो गई थी और उस स्टोन पर गिर गई थी. एंड क्लच्ड वन ऑफ द टिम्बर लॉग्स टू सेव हरसेल्फ. और अपने आप को बचाने के लिए उसने एक टिम्बर लॉग को कस के पकड़ लिया. द लॉग जैम्ड बिटवीन टू बोल्डर्स. वो जो लॉग था, लॉग ऑफ वुड जिसको उसने पकड़ा हुआ था, वो दो स्टोन्स के बीच में जैम था, वहां फंसा हुआ था. विद द वुमन क्लिंगिंग टू इट, जिस पर वो औरत लटकी हुई थी, एंड स्क्रीमिंग, चिल्ला रही थी. वाइल द क्रोकोडाइल पुल्ड ऑन हर लेग, जबकि वो क्रोकोडाइल जो है वो खींच रहा था उसके पैर को. थ्रेशिंग हिज माइट टेल, अपनी जो उसकी बड़ी सी टेल थी उसको थ्रैश करते हुए, बैंग बैंग टू एंड फ्रो इन ग्रेट स्मैकिंग फ्लेल्स as he tried to drag her free and carry her off down into the deeps of the pool. वो पूरी कोशिश कर रहा था उसको खींचने की, जिससे कि बहुत ही स्मैकिंग फ्लेल से, स्मैकिंग मीन्स वेरी लाइवली, ब्रिस्क, फ्लेल यू कैन से स्ट्राइक, है ना, स्ट्राइक. वो बहुत स्ट्राइक कर रहा था उसको, कोशिश कर रहा था कि किसी तरह से ये इसको फ्री कर ले यहाँ से खींचकर और फिर पानी में लेकर जाए. ब्लड स्प्रेड एवरीवेयर, सारे में खून स्प्रेड हो गया. सिबिया sprang, तभी सिबिया वहां से कूदी. फ्रॉम बोल्डर टू बोल्डर शी केम लीपिंग लाइक अ रॉक गॉड. एक पत्थर से दूसरे पत्थर पर वो एक गोट की तरह से उछलती हुई आ रही थी. समटाइम्स इट हैड सीम डिफिकल्ट टू क्रॉस दीज स्टोन्स. कई बार बड़ा मुश्किल होता था इन स्टोन्स को क्रॉस करना. स्पेशली द बिग गैप इन द मिडिल, खासकर जब उनके बीच में बड़ा सा गैप होता था, वेयर द रिवर कोस्ट थ्रू लाइक अ बल्ज ऑफ ग्लास. और उस गैप के बीच से पानी जो है, जो नदी है, वो पूरे अपनी स्पीड से बहती थी. बट नाउ शी केम ऑन विंग्स, लेकिन अब तो ऐसा लग रहा था जैसे कि वो पंखों के साथ वहां आई हो, उड़कर आई हो. चूजिंग हर फुटिंग इन मिड एयर विदाउट इवन थिंकिंग अबाउट इट, मतलब उछ हवा में उछलती हुई एक बार बिना सोचे. एंड इन वन मोमेंट शी वॉज बिसाइड द श्रीकिंग वुमन, और एक मिनट में वो फटाफट से उस चीखती हुई वुमन के बराबर में आकर खड़ी हो गई. In the boiling blood water, the face of the crocodile fastened round her leg was tugging to and fro and smiling. और उस उछलते हुए पानी में, जैसे कि बॉइलिंग ब्लडी वाटर था, जैसे कि वो पानी उबल रहा हो, उसमें उस क्रोकोडाइल का फेस देखा जा सकता था जिसने कि उसके लेग को पकड़ा हुआ था और वो पूरा हिल रहा था और स्माइल कर रहा था. His eyes rolled on to Sibia. अब उसकी आंखें एकदम सिबिया की तरफ गईं. One slap of the tail could kill her. उसका तो एक टेल का स्लैप भी जो है सिबिया को मार सकता था.
He struck. उसने जोर से अपने टेल से स्ट्राइक किया. Up shot the water. पानी ऊंचा ऊपर उछला 20 feet, लगभग 20 feet तक, and fell like a silver chain. Again, फिर से, the rock jumped under the blow. But in the daily heroism of the jungle, as common as a thorn tree, Sibya did not hesitate. लेकिन Sibya बिल्कुल भी डरी नहीं. She aimed at the reptile's eyes. This was her presence of mind. उसने सीधा निशाना बनाया उस क्रोकोडाइल की आंखों पर. With all the force of her little body, जितनी भी ताकत उसके छोटे से शरीर में थी, she drove the hay fork at the eyes. उसने hay fork को सीधा उसके eye पर उछाला, and one prong went in, right in, while its spear scratched past on the horny cheek. और उसका जो एक कांटा था, एक prong था ना, जो उसके hay fork का, वो सीधा उसकी आंख में जाकर लगा, और जो दूसरा था वो उसके चिन की तरफ लगा, चीक की तरफ. The crocodile reared up in convulsion. Convulsion is like, एक abnormal violent contraction होता है ना, जैसे contraction of muscles. और वो क्यों हुआ होगा? पेन की वजह से हुआ होगा. अचानक से वो rear up हो गया, till half his lizard body was out of the water, the tail and nose nearly meeting over his stony back. मतलब पूरा गोल गोल घूम गया वो, जैसे कि उसकी जो tail और nose थी जैसे मिल गई आपस में. Then he crashed back, exploding the water. और फिर वो एकदम से पीछे की तरफ गिर गया पानी में. And in an uproar of bloody foam, he disappeared. और बहुत सा झाग बना और वो उसमें गायब हो गया. He would die. वो मर जाएगा. Not yet, but presently. अभी नहीं, लेकिन थोड़ी देर बाद. Though his death would not be known for days. हालांकि कई दिनों तक उसकी डेथ का पता नहीं चलेगा. Not till his stomach blown with gas floated him. जब तक कि उसका पेट जो है फूल कर बिल्कुल गैस से वो फ्लोट ना करने लग जाए. Then perhaps he would be found upside down among the logs at the timber boom with pus in his eyes. तब कभी जाकर वो logs के बीच में कहीं पड़ा मिलेगा, timber logs के बीच में, और उसकी आंख में पस पड़ा हुआ होगा. सिबिया got her arms round the fainting woman. सिबिया ने अपने दोनों हाथों से पेंटिंग वुमन को, बेहोश होने वाली थी वो लेडी, उसको पकड़ा. एंड somehow dragged her from the water. पानी से निकालकर उसको खींच कर लाई. She stopped her wound with sand. उसके जो घाव हो गया था पैर पे, उसमें उसने सैंड डाला. And bound them with rag and helped her home to the Gujjar encampment, where the men made a litter टू कैरी हर टू समवन फॉर ट्रीटमेंट. और वहां से वो उसको किसी तरह से गुजर एनकैंपमेंट तक लेकर आई, जहां पर जो मेन थे, जो आदमी थे, फटाफट से वो उसको ले गए कहीं पर. मतलब लिटर इज अ काइंड ऑफ डिवाइस, यू कैन से. उन्होंने एक फटाफट से डिवाइस बनाया, काइंड ऑफ स्ट्रेचर, है ना, और उस पर वो कहीं पर ट्रीटमेंट के लिए उसको ले गए. देन सिबिया वेंट बैक फॉर हर ग्रास एंड सिकल एंड फोक. अब सिबिया वापस नदी पर गई, क्योंकि अपनी वो ग्रास, सिकल, फोक ये सब लेने के लिए. द फोक वॉज लाइंग इन द रिवर. वो फोक अभी उसकी नदी में पड़ा था. नॉट कैरीड अवे लकीली. लकीली वो बहकर कहीं गया नहीं. एंड एज शी बेंट टू पिक इट अप आउट ऑफ द वाटर, और जैसे ही वो झुकी अपने फोक को लेने के लिए पानी से, शी सॉ द ब्लू बीट. उसको वो ब्लू बीट दिखाई दिया. नॉट ब्लू नाउ. अब वो ब्लू नहीं था. विद द सन नियरली गॉन. क्योंकि अब सूरज नहीं था. बट अ नो कलर वाइट ब्लू, एंड इट्स शेप वॉबलिंग इन द मूवमेंट ऑफ द स्ट्रीम. लेकिन कोई कलर नहीं था, लेकिन व्हाइट ब्लू कलर का वो एक बीट था. और उसकी शेप भी जो है बड़ी वॉबलिंग लग रही थी, मतलब अनस्टेडी थी वो उसकी शेप, बिकॉज ऑफ द मूवमेंट ऑफ द स्ट्रीम, पानी के मूवमेंट की वजह से. She reached her arm down into a yard of the cold sick water to get it. अब उसने अपना हाथ डाला पानी में उसको उठाने के लिए. Missing it first of all because of refraction. हालांकि रिफ्रैक्शन की वजह से वो एक बार तो उससे उठाया ही नहीं गया. Then there it lay in her wet palm. लेकिन अब वो उसके हाथ में था. Perfect, even pierced, ready for use. बिल्कुल परफेक्ट था, यहाँ तक कि जैसे कि यूज करने के लिए तैयार हो. बीच से उसमें होल भी था. With the sunset shuffled about inside it like gold dust. ऐसा लग रहा था जैसे कि जो सनसेट है वो उसके अंदर शफल हो गया हो, गोल्ड डस्ट की तरह. After her heart went up in flames of joy. All her heart went up in flames of joy. She was extremely happy after getting that beat. After a bit, she twisted it into the top of her skirt. उसने अपने स्कर्ट में उसको किसी तरह से फंसा लिया against her tummy, so she would know if it burst through the poor cloth and fell. जिससे कि उसको पता चल जाए कि अगर वो गिरे ना कहीं. Then she picked up her fork and sickle. फिर उसने अपना fork sickle उठाया, the heavy grass, and set off home. आय आय, what a day! कितना अच्छा दिन है आज.
Her bare feet smudged out the wriggle mark of snakes in the dust. अब वो जो नंगे पैरों से जो स्नेक्स के रिगल मार्क बने हुए थे डस्ट में, वहां से होते हुए, देयर वाज अ थिन सिंगिंग ऑफ मलेरिया मॉस्किटोज अमंग द ट्रीज नाउ, क्योंकि अंधेरा हो गया था, रात के समय में मॉस्किटोज की आवाज सुनाई दे रही थी. एंड दिस ट्रैक वाज सो मच यूज्ड एट नाइट बाय मोरोस ओल्ड मकना एलिफेंट, द टस्कलेस वन. और अक्सर रात को यहाँ पर जो है एलिफेंट भी आया करता था. बट सिबिया वॉज नॉट थिंकिंग ऑफ एनी ऑफ देम. लेकिन सिबिया इनमें से किसी के बारे में नहीं सोच रही, ना स्नेक्स के बारे में, ना एलिफेंट के बारे में. द स्टार्स केम आउट, तारे बाहर निकल आए थे. शी डिड नॉट नोटिस, वो भी उसने नोटिस नहीं किया. ऑन द वे बैक शी मेट हर मदर, वापस घर जाते हुए उसकी माँ उसको मिली, आउट ऑफ ब्रेथ, सांस फूला हुआ था. कम टू लुक फॉर हर, जो उसको ढूंढने के लिए निकली थी. एंड स्कोल्डिंग, और डांट रही थी. आई डिड नॉट सी टिल आई वॉज होम दैट यू वर नॉट देयर. घर पहुंचने तक भी मैंने नहीं देखा कि तुम वहां नहीं हो. आई थॉट समथिंग मस्ट हैव हैपेंड टू यू, मुझे तो लगा तुम्हें कुछ हो गया होगा. एंड सिबिया bursting with her story cried, और सिबिया को अपनी कहानी एकदम वो सुनाने लगी. समथिंग डिड, वाकई में हुआ. आई फाउंड अ ब्लू बीड फॉर माई नेकलेस, लुक, देखो मुझे अपने नेकलेस के लिए ब्लू बीड मिल गया. Okay, so Sibia was more excited about getting this blue bead. She didn't tell her mother about, that encounter with the crocodile and how she killed it and how she saved the life of that Gujar woman. But she was very much bothered to tell her about that blue bead. I hope you have understood this story.